Again, good morning everyone. So I'll be taking this performance management and training intervention paper. This has not yet been started, right? Okay. एक मिनट रुको तुम. Okay. 4 शब्द हैं. Performance management and training intervention. What is performance? Performance. How you do things? Right? How you are doing things, how you are doing an activity, how you are going ahead with things assigned to you, right? That is performing, right? Performance management, how well you are doing those things, right? Performance management basically क्या है? Is there any need to manage the performance? Yes or no? Yes. Why? Improvement के लिए. बिल्कुल सही. If you will not be knowing your flaws, if you are not knowing what you are doing wrong, then how will you improve? How will you contribute to the organization's success? How will you contribute to your own personal goals if you do not know what you are doing wrong? Right? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Planning. Organization plan. Right? Then organization set the target. Planning हो गई, target set हो गया. Then performance. Actually when you are doing the things, when you are actually performing the things, that is performance. Then evaluation, review. When you have done your task, then the evaluator evaluates what you have done, right? Then you are given a particular grade, then you are given a particular feedback, then you are given a particular assessment. Okay, this is what you have done. You might have done the best according to you, but that best might not be the best for your employer, right? Right? पेपर तो सब अच्छा ही लिख के आते हैं, right? But जो evaluator होता है, that assigns different marks to different people. Why? Because as per their standard set, target set, you are falling below or above the average, right? So that is assessment. Assessment के बाद there is feedback कि you need to improve upon these things, right? Unless and until there is feedback, there won't be any, again, planning and target setting. So that's a circle, right? Target set, then you perform, then you are reviewed, then feedback, controlling. Then उसके basis पे again target set, again you do things, again everything is there, and then the circle keeps on going. Are you getting it? Right? तो performance को manage करना इसलिए ज़रूरी होता है because you need to know what you are doing right and what you are doing wrong. क्योंकि आप वही continue करोगे आगे. Okay? अगर आपको किसी ने बताया नहीं है, let's say there is a particular person who does not know कि वो ये चीज़ गलत करता है, ये concept उसका गलत है, तो that concept will be there in that person's mind forever और वो गलत ही बताएगा हर किसी को, right? तो there has to be some intervention, there has to be somebody who tells them कि ये गलत है, ये सही है, as per the expectation of the organization. Second part of your syllabus talks about training intervention. Performance manage हो गई, performance up to the mark नहीं है, then what? Will you lay off the employee? Will you terminate the employee? No. Employee is a resource. Remember, just like gold and silver, this is also a resource on whom you have spent so much money, so much time and effort to mold that employee as per the organization's culture. So why to leave that employee? Why to terminate that employee on one specific galti? Right? So you need to train them. So training intervention, बीच में you need to train them. Okay, so you have two modules,
नाम से पता लग रहा होगा. फर्स्ट मॉड्यूल टॉक्स अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेकंड टॉक्स अबाउट ट्रेनिंग. फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है? पर्सपेक्टिव्स टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? व्हाट आर द वेरियस वेज ऑन विच यू रेट द एम्प्लॉय, राइट? किस तरीके से आप परफॉर्मेंस को रेटिंग देते हैं, वहाँ ये फर्स्ट मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे. सेकेंड मॉड्यूल के अंदर है आपका ट्रेनिंग. ट्रेनिंग किसको देनी है, कब देनी है, क्यों देनी है, नीड क्या है, राइट? हमने KRA KPA के बारे में पिछली क्लास में भी बात की थी. व्हाट आर KRAs? की रिजल्ट एरियाज. KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, राइट? रिमेंबर, वन सॉफ्टवेयर गूगल का एम्प्लॉई, you won't count his in and out timings. You will count that person's competency on the basis of how many softwares that person is developing without any error, without any bugs. That will be the key performance indicator. On the other hand, McDonald का employee, आप उसके in and out timing भी आप judge कर सकते हो. You will be judging that employee on the basis of in and out timings also. बिकॉज उस एम्प्लॉय का पूरा एक सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा इफ़ दैट एम्प्लॉय इज लीविंग इन बिटवीन. कैसे? एक एम्प्लॉय ऑर्डर लेता है, दैट ऑर्डर इज पास्ड ऑन टू दी पीपल हु आर मेकिंग दी फूड. एक बन कलेक्ट करता है, जैसे पिज़्ज़ा या फिर बर्गर, किसी का भी एग्जांपल ले लो. एक उसको कट करता है एंड उस पर टिक्की लगाता है, दूसरा उस पर केचप्स वगैरह लगाता है, तीसरा फ्राइज चल रहा होता है. तो एक भी पर्सन इफ इज नॉट देयर इन द लाइन, देन द होल लाइन विल बी डिस्टर्ब्ड. तब आप उसका इन एंड आउट टाइमिंग्स यू कैन जज दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू द इन एंड आउट टाइमिंग्स. सो दैट विल बी द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर दैट एम्प्लॉय. बट फॉर द सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय, हिज इन एंड आउट टाइमिंग्स विल नॉट बी द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. ओके, so critical incidences, the indicators you have to pinpoint for each and every type of employee, for each and every type of role. हर किसी के लिए सेम परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं होंगे. ओके, why do you need a performance management system? परफॉर्मेंस को मैनेज करने का सिस्टम क्यों है? Why do you need to rate the employees? Why do you need to tell the employees that they are doing something right or wrong? Okay. ठीक है. Okay, well and good. To make sure that the employees are working in line with the organization's objectives, you need to tell them that you are not doing this correctly, hence the organization's goals are impacted. ओके, और एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट. ओके, व्हाई डू यू नीड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम? नंबर 1, इट एड्स इन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली. ऑब्जेक्टिवली एंड सब्जेक्टिवली में क्या फ़र्क होता है? ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है दैट दीज आर द एरियाज. फोटो नहीं यहाँ पे, अभी फोटो नहीं, पीछे रखो फोन. नो फोन, नो. लिख लो, नहीं लिखना तो बुक में ये मिल जाएगा कहीं ना कहीं. ठीक है, शॉर्ट में लिख लो या तो की पॉइंट्स लिख लो. ओके, आजकल मैंने ये भी बहुत देखा है बच्चों में, एवरीबॉडी लाइक फोटो. थोड़ा सा लिख लो, राइट? सब कुछ मत लिखो, ये तो बहुत सारा दिखाऊंगी मैं इसमें, अभी सब कुछ नहीं लिखना. मेन जस्ट कैरी द जिस्ट ऑफ द क्लासेस. ओके, ठीक. नंबर 1, aids in evaluation of performance objectively. Okay, we were discussing performance management system. System is basically एक सेट क्राइटेरिया सेट कर दिया है, जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की हम बात कर रहे थे कि these are the points where the employee will be judged for this role. For this particular role, these are the points where the employee will be judged. Right? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करना कि दो एम्प्लॉय सेम रोल पे हैं, then they should not be
judged on different methods. That is why you need a performance management system. एक रोल पे एक ही टाइप का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा. 2 people वर्किंग एट द सेम रोल, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक का आप इन एंड आउट टाइम नोट कर रहे हो, एक का नहीं कर रहे हो, नॉट ओके. ठीक है, क्या चाहिए? एसी चाहिए, इसी ने बंद करवाया था. सेकेंड इज एम्प्लॉई एंगेजमेंट. इफ द एम्प्लॉई नोज कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत है, दैट एम्प्लॉई विल बी मोर एंगेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. राइट, एम्प्लॉय बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में, ऑर्गेनाइजेशन के आगे व्हाट डू वी से एम्स, मिशन एंड विजन के अंदर. अगर एम्प्लॉय को पता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या जो कर रहा है वो गलत है, ही नोज और शी नोज. राइट, इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी. जब तक आपको आपकी गलती नहीं पता है, बीच बीच में असेसमेंट लेने का क्या मतलब होता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, दैट यू नीड टू नो योर फ्लॉज, दैट यू नीड टू नो कहाँ आप फॉल बैक कर रहे हो, ताकि आप फाइनल एग्जाम के अंदर यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड एंड डू वेल. राइट, तो प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है इफ़ यू नो वेयर व्हाट आर योर की एरियाज वेयर यू नीड टू फोकस अपॉन. अचीव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, बेटर डिसीजन मेकिंग. स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी पिछली क्लास में भी हमने पढ़ी, लॉन्ग टर्म विजन, टैक्टिक शॉर्ट टर्म. राइट, तो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव हो जाएं, इसीलिए ऑल्सो यू नीड टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. सब लोग एक साथ कुछ भी करते रहेंगे, नोबडी इज इवैल्यूएटिंग एनीबडी, पता ही नहीं लगेगा कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, पता ही नहीं लगेगा कब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मिस हो गया. राइट, एंड बेटर डिसीजन मेकिंग. ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत तरीके हैं. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10-12 वेज in which the employee can be rated, in which the employee's performance can be evaluated. बहुत अलग तरीके हैं, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, हर किसी रोल के लिए अलग है. सो यू नीड टू अडॉप्ट द डाइवर्स एरियाज एज पर द रोल फिट. ठीक है, जैसे कि नंबर 1, अच्छा नहीं अभी नंबर 1 नहीं, These are some of the interconnected components जो कि आपको पता होने चाहिए. These are just the terms that you need to know. Number 1, goal setting. What are goals? Mission, vision. Organization का goal, mission, vision आपको पता होना चाहिए. What are the difference between mission and vision? Vision क्या होती है, mission क्या होता है, goals क्या होते हैं? तो सेम नहीं हो गया. वॉट यू आर डिस्क्राइबिंग इज अ विजन, कि हम अपने आप को यहाँ पर देखते हैं. हाउ, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल मिशंस. फर्दर, टू अचीव दैट पर्टिकुलर वन मिशन देयर विल बी गोल्स. ठीक है, तो विजन इज अ ब्रॉडर टर्म दैट वी नीड टू बी पायनियर ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन इन द नेक्स्ट 5 years. विजन. How we are doing it? Let's say through these PCP classes and the online classes. That is the mission. Goals. हर हफ्ते का गोल है कि इतने हमें बच्चे लेके आने हैं, इतने हमें बच्चों को पढ़ाना है. ओके, तो विजन, मिशन, गोल्स का पता होना ज़रूरी है. अगर आप कहीं पे भी एम्प्लॉय इंटरव्यू देने जा रहे हो, रीड द कंपनीज मिशन, विजन. पूछ लेते हैं कभी कभी. राइट, अगर डायरेक्टली नहीं पूछेंगे देन दे विल बी आस्किंग यू कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन दिस कंपनी. अलाइन योर आंसर विद दैट मिशन एंड विजन. ओके, अच्छा लगेगा उनको. परफॉर्मेंस रिव्यूज़. परफॉर्मेंस रिव्यू एनुअली हो सकता है, बाय एनुअली हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितना छोटा ऑर्गेनाइजेशन है. परफॉर्मेंस मेजरमेंट. अगेन, हर एक काम को आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते. यू नीड टू सेट द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि आप इन्हीं को इवैल्यूएट करोगे. ओके, परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है.
अच्छा अगर कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो रिकॉग्नाइज करो, राइट। नॉन मॉनिटरी वे में भी रिकॉग्नाइज कर दो, अवार्ड दे दो, सर्टिफिकेट दे दो, एंड मॉनिटरी वे से भी उसको रिकॉग्नाइज करो, बोनस दे दो, एडिशनल शेयर दे दो उसको कंपनी के अंदर। शेयर समझते हो कंपनी का, राइट क्या होता है? जैसे जो बड़े लेवल पे होते हैं, द पीपल हु आर एंगेज्ड एट अ हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, they do not get bonuses and everything, they get the company shares, right? Bonus shares, they do not get the bonus, they get the bonus shares। मतलब कंपनी का कुछ पार्ट, let's say 1 to 2% or 0.1%, some number of shares they will be assigned in the form of equity shares। इक्विटी शेयर का मतलब है ओनरशिप स्टेक आपने ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी का थोड़ा सा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हाथ में, हु हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। ओके, फीडबैक एंड कोचिंग, फीडबैक भी ज़रूरी है देना, और उस पर्सन को द पर्सन हु इज़ लैगिंग बिहाइंड उसको कोच भी करो, ट्रेन करो। एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, कहीं पे कोई स्किल गैप है, कहीं पे कोई मैन पावर की कमी है, उसको भरो, राइट। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस। सबसे पहले प्लानिंग, राइट। प्लानिंग फॉर व्हाट? प्लानिंग एंड सेटिंग एक्सपेक्टेशंस कि यू आर एक्सपेक्टेड ऑफ दिस टास्क इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इतने टाइम में ये टास्क आपने करना है। ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान करके आपको कम्युनिकेट कर दिया, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इज मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंटिन्यूसली आप उसकी मॉनिटर करो परफॉर्मेंस को, और प्रोग्रेस रिव्यू, लेट्स से 2 साल का टास्क था, आप उसको 6-6 महीने में डिवाइड करो, कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करो कि अब क्या प्रोग्रेस है, क्या आपने काम करा है, अब क्या प्रोग्रेस है, क्या अब आपने काम करा है, राइट, कितना एडिशनल काम करा है। तो प्रोग्रेस मीटिंग्स हैज़ टू बी देयर। देन डेवलपिंग द कैपेसिटी टू परफॉर्म, ट्रेनिंग दो, मेंटरिंग करो, कोचिंग करो, काउंसलिंग करो, डेवलप द पर्टिकुलर एम्प्लॉई। कहीं पे वो फॉल बैक कर रहा है, प्रोग्रेस मीटिंग में ये पता लगा कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज लैगिंग बिहाइंड द अदर्स बिकॉज ऑफ दीज मेनी रीजंस, स्किल सेट नहीं है, तो उसको ट्रेनिंग करो। Then periodically rating to know who the best and the worst performers are। बेस्ट परफॉर्मर है रिकॉग्नाइज करो, वर्स्ट परफॉर्मर है कोई तो उसको ट्रेनिंग दो, कंटिन्यूसली वर्स्ट है देन हैंडशेक करके टर्मिनेट कर सकते हो, राइट। एंड रिवॉर्डिंग, अगेन रिवॉर्डिंग, राइट। बेस्ट एम्प्लॉय है, अच्छा एम्प्लॉय है, अच्छा काम कर रहा है, रिवॉर्ड दें। Okay, there are 2 methods of performance appraisal, traditional and modern। Traditional method basically talks about जो काम आपका हो चुका है उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट करना। इनके हम एडवांटेजेस भी कुछ के देख लेंगे, कुछ के डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। एंड देन देर आर मॉडर्न मेथड्स विच आर एंगेज्ड इन मोर देन 1 क्राइटेरिया टू रेट द एम्प्लॉय। जैसे 360 डिग्री अप्रेजल, 360 डिग्री में पूरा सर्कल बन जाता है, राइट। 360 डिग्री में क्या होता है? यू विल बी रेटिंग योर सेल्फ, योर पीयर्स विल बी रेटिंग यू, आपके साथ काम करने वाले, योर जूनियर्स विल बी रेटिंग यू, योर सीनियर्स विल बी रेटिंग यू, योर मोस्ट सीनियर विल ऑल्सो बी रेटिंग यू, ताकि सब्जेक्टिविटी कम हो पाए। हो सकता है आपके बॉस से नहीं बनती है, उसने आपको गंदी रेटिंग दे दी, अनसेटिस्फैक्ट्री रेटिंग दे दी, बट आपके जूनियर्स, आपके पीयर्स, आपके सुपर सीनियर ने अच्छी रेटिंग दी है, तो दैट विल एवरेज आउट दैट रॉन्ग रेटिंग, राइट। पुरानी रेटिंग्स, ट्रेडिशनल रेटिंग मेथड में क्या होता था, एक ही रेटिंग मिलती थी एंड दैट यूज्ड टू बी द फाइनल वन। कुछ मेथड इसमें ऑब्जेक्टिव है, कुछ सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मतलब समझते हो? ऑब्जेक्टिव का मतलब है, मान लो मैंने पूछा कि इज़ दिस एम्प्लॉय पंक्चुअल, येस नो, उसके आगे कुछ नहीं है, येस नो है या नहीं है। सब्जेक्टिव होता है कि मैंने एक पैराग्राफ लिखने को बोल दिया, वहाँ पे आप अपना कुछ भी लिख सकते हो,
तो ऑब्जेक्टिव के अंदर स्कोप ऑफ चूजिंग समथिंग रॉन्ग इज वेरी लेस. सब्जेक्टिव के अंदर द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द रेटर माइट ऑल्सो कम इन. समझ रहे हो? सब्जेक्टिव के अंदर इट इज सब्जेक्टिव टू पर्सन. इसने मुझे कुछ और रेटिंग दी, उसने कुछ और रेटिंग दी, सब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, मैं पंच डेली टाइम पे करती हूँ तो मैं पंक्चुअल हूँ. ऑब्जेक्टिव है, नोबडी कैन डिनाई दैट. वो भी यही बोलेगी, ये भी यही बोलेगा, राइट? तो ऑब्जेक्टिव के अंदर स्कोप ऑफ रॉन्ग रेटिंग इज लेस, बट अगेन उसमें डिटेल्स नहीं आती. 360 डिग्री अप्रेजल में डिटेल्स आती हैं. बार्स बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल के अंदर डिटेल्स आ जाती हैं, राइट? अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं. ओके, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मेथड्स, क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल मेथड के अंदर एम्प्लॉय के ट्रेट्स को मेजर किया जाता है, एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है, एम्प्लॉय की इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस, लीडरशिप को मेजर किया जाता है. वेयर एज मॉडर्न के अंदर क्या होता है, रिजल्ट्स को मेजर किया जाता है, पर्सन को नहीं. आप पर्सन को नहीं रेट कर रहे हो यहाँ पे, आप रिजल्ट्स को रेट कर रहे हो, विच शुड बी द क्राइटेरिया, राइट? हैलो इफेक्ट समझते हो कि आपकी एक गलती से सारा का सारा आपका परफॉर्मेंस, जो कि आपने पास्ट में 100 सही चीज़ें करी हैं, एक गलत चीज़ कर दी एंड में आते आते, तो दैट वन रॉन्ग थिंग विल इम्पैक्ट योर होल परफॉर्मेंस मेजरमेंट. दैट वन रॉन्ग थिंग विल इम्पैक्ट योर होल रेटिंग. ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव भी तो हो सकता है, आपने पूरा साल कुछ काम नहीं किया और एंड में आके बहुत काम कर दिया. ऐसे लोग करते हैं. तो यू विल बी रेटेड वेरी हाई ऑन दैट परफॉर्मेंस रेटिंग, राइट? तो आपने एम्प्लॉय को रेटिंग दी, उसके काम को थोड़ी ना दी है. काम होता तो एवरेज आउट करके देखते, राइट? ओके, फर्स्ट ग्राफिक रेटिंग सिस्टम. ये कुछ ऐसा दिखता है, आपने देखा. फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ वर्क, 5 लेवल हैं, आप उसको क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे रेट कर सकते हैं. टिक मार्क करना है आपने, राइट? पहला बोलता है पुअर, फिर दूसरा बोलता है बिलो एवरेज, मैं ऊपर वाले की बात कर रही हूँ. देन क्वालिटी ऑफ वर्क एवरेज, देन गुड, देन एक्सीलेंट. फ्रॉम लो टू हाई आपने ग्राफिकली रेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क दैट द पर्सन परफॉर्म्स. ठीक है? ये एक और एग्जांपल है. फर्स्ट वाले इसके केस के अंदर फॉर एग्जांपल 4 यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिए हुए हैं. क्वालिटी ऑफ वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वर्क, neatness, thoroughness and accuracy of work, knowledge of job, clear understanding of factors connected with the job, attitude exhibits enthusiasm and cooperativeness on the job. अलग अलग तरीके हैं जो कि आपने एम्प्लॉय को रेट करना है. आपने बस टिक मार्क करना है कि दिस इज़ फेयर, दिस इज़ गुड, अनसेटिस्फैक्ट्री, आउटस्टैंडिंग. ठीक है? ग्राफिकली यू आर रेटिंग द एम्प्लॉय. उसका एग्जाम्पल उधर भी लिखा हुआ है. अटेंडेंस के बेसिस पे बिहेवियर टुवर्ड्स सबॉर्डिनेट कैसा है, सिंसेरिटी कैसी है, डिपेंडेबिलिटी कैसी है. ठीक, एग्जाम्पल्स देख लिए. अब इसका मतलब क्या है. लीनियर, ओके, क्राइटेरियाज ऑलरेडी सेट हैं. आपने क्वालिटी पे काम करना है, आपने पंक्चुअलिटी पे रेट करना है, आपने टाइमलीनेस पे रेट करना है, आपने इफेक्टिवनेस पे रेट करना है. द क्राइटेरियाज आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड एंड सेट. फर्स्ट पॉइंट. सबसे इजी है इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है. सिंपल है, कोई भी रेटिंग कर सकता है, इट कैन बी डन. क्राइटेरियाज क्या क्या हो सकते हैं वो अभी आपने देख लिए हैं. इसमें और क्या लिखे हैं. क्वालिटी ऑफ वर्क, पंक्चुअलिटी, जॉब नॉलेज, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. इन सब पे आप रेटिंग दे सकते हैं. रेटिंग स्केल कुड बी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. जैसे कि ये आपका डिस्क्रीट स्केल था जो आपने पीछे भी देखे थे एग्जाम्पल्स के अंदर.
राइट। डिस्क्रीट स्केल क्या होता है, अलग अलग हेडिंग दी हुई हैं। कंटिन्यूस स्केल क्या होता है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 बीइंग द लीस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट, रेट द एम्प्लॉय। ये कंटिन्यूस स्केल हो गया। डिस्क्रीट स्केल जो अभी आपने एग्जांपल्स देखे थे, सैटिस्फैक्ट्री, अनसैटिस्फैक्ट्री, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। ओके, ये भी डिस्क्रीट का एग्जांपल है। स्टेटमेंट है दिस एम्प्लॉय इज अ टीम प्लेयर एंड थ्राइव्स इन अ टीम एनवायरनमेंट। इसके ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट, एक्सट्रीमली अनलाइकली, मतलब डज नॉट वर्क वेल इन टीम्स। सेकेंड, क्वाइट अनलाइकली, डजंट पर्टिकुलरली एन्जॉय वर्किंग इन अ ग्रुप। कर लेता है बट एन्जॉय नहीं करता, काम कर लेता है बट ही डज नॉट एन्जॉय वर्किंग इन अ ग्रुप। हार्ड टू से, अभी हमने इसको टीम लाइक सिचुएशन में देखा ही नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रेट द एम्प्लॉय ऑन दिस पर्टिकुलर, तो बीच में आपने रेटिंग दे दी गई। क्वाइट लाइकली कि उसको हाँ पसंद है। एक्सट्रीमली लाइकली कि वो एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहा है टीम लाइक एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यूस रेटिंग स्केल का। क्वेश्चन, रेट द एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ वर्क, 1 पुअर, 10 एक्सीलेंट। बीच में आपने कहीं रेटिंग दे दी, ये कंटिन्यूस स्केल है। ठीक है, ग्राफिक रेटिंग स्केल को लीनियर रेटिंग स्केल भी बोलते हैं। लीनियर, एक एम्प्लॉय एक क्राइटेरिया, लीनियर स्केल। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, हेंस वाइडली यूज्ड। कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी हो जाती है कि सबके लिए सेम ही रेटिंग स्केल यूज हो रहा है, उसके लिए भी मैं सेम वही वाला पर्चा दे रही हूँ, उस एम्प्लॉय के लिए भी वही वाला सेम पर्चा भर रही हूँ। तो कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी होती है कि मैंने इसको 5 में से 4 रेटिंग दी है, उसको मैंने 5 में से 3.5 दी है। कंपेयर हो गया, दिस एम्प्लॉय इज बेटर। ठीक, क्लियर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज ऑल्सो सेट, जो हमने देखे थे, राइट। टीम वर्क, लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ वर्क। इनएक्सपेंसिव टू डेवलप, कोई खर्चा नहीं होता है इसको डेवलप करने में, एक पेपर ही तो बनाना है ग्रिड के साथ। ट्रेनिंग फॉर इवैल्यूएटर्स, जो इवैल्यूएट कर रहा है उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कब आपने इसको 4 रेटिंग देनी है, कब आपने इसको 5 रेटिंग देनी है, कब आपने इसको 3 रेटिंग देनी है। ऐसे कहीं भी किसी को भी कुछ भी नहीं दे देना है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इस एम्प्लॉय को मैं भी रेट कर रही हूँ और इस एम्प्लॉय को एक और रेटर रेट कर रहा है, क्या हम दोनों में सिमिलैरिटी है, दैट विल डिसाइड कि क्या हम ऑब्जेक्टिव हैं या सब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हम दोनों सेम रेटिंग दे रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय तो वही है, उसका काम भी वही है, राइट। अगर मैं अलग रेटिंग दे रही हूँ, वो अलग रेटिंग दे रहा है, देन दैट इज सब्जेक्टिव, कि एम्प्लॉय तो ठीक है बट रेटर्स में कुछ गड़बड़ है, राइट। तो सेम एम्प्लॉय विल बी रेटेड बाय 2 रेटर्स टू एंश्योर कि सब्जेक्टिविटी ना हो एंड ऑब्जेक्टिविटी हो, एवरेज कर लेंगे दोनों का स्कोर। एक ने 1 रेटिंग दी है, एक ने 5 रेटिंग दी है, कुछ तो गड़बड़ है रेटर्स में, राइट। मे बी द रेटर्स डू नॉट नो द क्राइटेरिया ऑन विच दे हैव टू रेट। ओके, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर, क्लियर है, सिंपल है, स्ट्रक्चर्ड है। एफिशिएंसी, टाइमली मैनर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रेट कर सकती हूँ। ओके, देन कंपेरेबिलिटी, आई कैन कंपेयर 2 people, their performance on the basis of rating they have been given. फीडबैक एंड डेवलपमेंट, इट हेल्प्स टू ईजिली डेवलप फीडबैक। हमें इतना कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं करना है कि वेटेड एवरेज, अभी एक वेटेड एवरेज भी आएगा कि क्वालिटी ऑफ वर्क को हम इतना वेट दे रहे हैं, टाइमलीनेस को हम इतना वेट दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे कोई वेटेज नहीं है, इसलिए सिंपल है, फीडबैक भी जल्दी से मिल जाता है। अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो भी आपने क्राइटेरिया सेट किए थे, जैसे पंक्चुअलिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क, लीडरशिप स्किल्स, थ्राइविंग इन टीम एनवायरनमेंट, वो सब आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलाइन होंगे। ऑर्गेनाइजेशन अगर एथिकल है तो एथिकल भी डाल सकते हो आप उसके अंदर एक क्राइटेरिया, राइट। तो क्राइटेरिया शुड बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। लिमिटेशंस, सब्जेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इवैल्यूएटर्स, मैं कुछ और इवैल्यूएट करूंगी, वो कुछ और इवैल्यूएट करेगी सेम एम्प्लॉय को, राइट।
मे बी बिकॉज किसी एक से इसकी इतनी ज़्यादा खास नहीं है। सिंपलिस्टिक असेसमेंट ओवर सिंपलिस्टिक अप्रोच है। एक हम एडवांटेज भी यही पढ़ रहे हैं कि इट इज़ सिंपल ईजी टू यूज़, बट ये ओवर सिंपलिस्टिक है। हाउ कैन यू रेट एन एम्प्लॉय की टाइमली है 1 2 3 4 5 रेट कर दो, राइट। लैक ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय टाइमली नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा। हो सकता है कोई एम्प्लॉय क्वालिटी नहीं दे पा रहा, क्यों नहीं दे पा रहा। इज इट ऑलवेज कि ये क्वालिटी नहीं देता, कि इज इट जस्ट फ्रॉम द पास्ट 6 months। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है इसमें, राइट। हो सकता है फैमिली इश्यूज चल रहे हो कोई, इसलिए फ्रॉम द पास्ट 6 months द एम्प्लॉय हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड और गिव 100% टू द जॉब, राइट। नोबडी इज केयरिंग अबाउट दैट हेयर, राइट। इनको तो बस रेटिंग देनी है, तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है कोई, ठीक है। पोटेंशियल फॉर हैलो और हॉर्न इफेक्ट, ये हमने पढ़ा। हैलो इफेक्ट, एक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे रहा है। एंड में आपने कुछ पॉजिटिव कर दिया एंड देन यू हैव बीन रेटेड एज अ वेरी एक्सीलेंट एम्प्लॉय, वेरी गुड एम्प्लॉय ऑन ऑल द क्राइटेरियाज। या फिर एंड में कुछ गड़बड़ कर दी, पूरा साल सब कुछ अच्छे से काम किया, एंड में गड़बड़ कर दी या एंड में छुट्टी मार ली, देन यू विल बी रेटेड एज अ वेरी बैड एम्प्लॉय, राइट। लिमिटेड फीडबैक, यहाँ पे आप डाइव ही नहीं कर रहे हो पर्सन की स्ट्रेंथ वीकनेस में, सो इट इज़ जस्ट कि टाइम से आना, तुम टाइम से नहीं आते, टाइम से आना, यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, राइट। तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक नहीं है, क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक कर लो, दैट इज़ इट। तो फीडबैक भी प्रॉपर आप नहीं दे पा रहे हो बिकॉज यू आर लैकिंग द कॉन्टेक्स्ट हेयर, ओके। सेकेंड मेथड, रैंकिंग मेथड। यहाँ पर क्या करते हो आप कि आप 5 एम्प्लॉयज़ या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज़ हो उनको एक दूसरे के अगेंस्ट रैंक करते हो। 5 एम्प्लॉयज़ हैं तो 5 रैंक मिलेंगी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क। लेट्स से अगला स्लाइड, दिस ए बी सी यहाँ पे हैं क्राइटेरियाज। ए लेट्स से क्वालिटी ऑफ वर्क है, बी लेट्स से पंक्चुअलिटी है, एंड सी लेट्स से है आपका टीम वर्क, ठीक है। इसके बेसिस पे आपने हर एम्प्लॉय को 1 2 3 4 रेट कर दिया एज अगेंस्ट दी अदर, ओके। ये भी बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है। ये अप्रोच बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चल पाती क्योंकि आप कितनी रैंकिंग दोगे, 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो 100 रैंक दोगे। और वाई इज़ इट कि 1 हैज़ टू बी, किसी की 2 सेम रैंक नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं, बट यहाँ पे यू विल बी फोर्स टू सेट रैंक 2 or 3, somebody should be carrying each rank, सेम रैंक नहीं हो सकती, राइट। तो 99 और 100 वाला जो है, हो सकता है वो दोनों ही 1 पे आ रहे हों, दोनों ही 99 पे आ रहे हो, बट यू विल हैव टू रेट 1 over the other, राइट। इसमें क्या होता है, जो लास्ट रैंकिंग वाला एम्प्लॉय है, अगर सारे जॉब्स में वो लास्ट ही आ रहा है, ए बी सी जॉब्स में कोई एक एम्प्लॉय है जो कि सब में लास्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल रवि, यहाँ पे अगर आप देखो लास्ट में 455, इसकी सब में रेटिंग लास्ट ही है, रैंक लास्ट है, राइट। तो इससे बात की जाएगी या फिर इसको ले ऑफ कर दिया जाएगा। बट हो सकता है रवि इतना बुरा भी ना हो, क्योंकि बस रैंक देनी है और बाकी सब भी बहुत एफिशिएंट है और रवि उससे थोड़ा सा कम एफिशिएंट है। यहाँ पे ये तो नहीं पता लग रहा ना कि हाउ लेस एफिशिएंट इज रवि ओवर अदर्स, राइट। हाउ मच क्वांटिफाई तो आप यहाँ पे कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए यू कैन नॉट जस्ट ले ऑफ रवि ओवर हेयर, क्योंकि यू आर नॉट क्वांटिफाइंग कि कितना कम काम कर रहा है ये, क्या कभी भी टारगेट मीट नहीं करता है। मान लो दिस एम्प्लॉय एंड मी, दिस एम्प्लॉय हैज़ बीन रेटेड 3, रैंक 3 मिली है, मुझे 4 मिली है, बट वो 4 रैंक सिर्फ एक छोटे से टास्क की वजह से मुझे 4 मिली है, अदरवाइज आई हैव बीन ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो क्या मैं बहुत ही बिल्कुल ही लो पे हूँ? नो, बट यहाँ पे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, राइट। यहाँ पे तो ये समझ में आ रहा है कि रवि तीनों टास्क में लास्ट है, राइट, बट कितने से लास्ट है वो नहीं पता लग रहा। आर यू ऑल गेटिंग इट? नो? यस? आर यू ऑल विद मी? तो यहाँ पे कितने से कम है
that is not being known, which is a flaw, which is a limitation of this method. Third point इसमें देखो, it does not tell that how much better or worse one is than the other. कितना अच्छा है और कितना बुरा है ये नहीं पता लग रहा, बस you are ranking them. Okay. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो रैंकिंग मेथड कैन नॉट फंक्शन. थर्ड मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन. पेयर्ड कंपैरिजन, यहाँ पे जो बॉक्स लिखा है बना है उसमें देखो, एम्प्लॉय के 5 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़ हैं तो कितने पेयर्स बनेंगे, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2. n इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, कितना आया 10. ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 पेयर्स आपके बनेंगे. राइट, 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स में यहाँ लिखा हुआ है. तो एवरी एम्प्लॉय विल बी, ये पिछले मेथड की डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए कर रहा है कि 1 to 1 हम कंपैरिजन करेंगे, इसको इसी से कंपेयर करेंगे, देन मुझे उससे भी कंपेयर करेंगे, देन उसे इससे भी कंपेयर करेंगे. एवरीबडी विल बी रेटेड अगेंस्ट एवरीबडी. ओके, और जो एम्प्लॉय हर रेटिंग में कम परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे K with M, let's say K is better performer, M is not. K with R, K is again better performer, R is not. यहाँ पे V is better performer, K is not, और यहाँ पे K is better performer, B is not. तो मतलब क्या कंक्लूजन है, K is overall better performer. राइट, अगेन सिमिलरली बाकी सब केसेस में भी हम यही करेंगे. यहाँ पे तो हमने देख लिया कि V is better performer, बट यहाँ पे हो सकता है ना हो. राइट, M is better performer. राइट, आर यू गेटिंग इट? तो इसके अंदर हम 1 to 1 एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कंपैरिजन करते हैं, और एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कंपैरिजन के टाइम पे कौन सा एम्प्लॉय बेटर कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय कंपैरिजन में कम कर रहा है, ओवरऑल देखते हैं फिर कि हमने 10 पेयर के अंदर K 3 बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 10 पेयर्स के अंदर M 2 बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है पेयर्ड कंपैरिजन के अंदर. राइट, तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि K इज ओवरऑल बेटर परफॉर्मर, M इज सेकेंड नंबर पे बेटर परफॉर्मर. ओके, इसको भी रीड कर लेते हैं. ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉय इन 1-on-1 बेसिस. और जितनी बार एक एम्प्लॉय को आप अच्छी रैंकिंग दोगे एज कंपेयर टू दी काउंटर पार्ट, काउंटर एम्प्लॉय, उतनी बार उतना हम ये समझते हैं दैट द एम्प्लॉय इज बेटर परफॉर्मर. एंड अगर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे 5 एम्प्लॉयज़ थे तो ही 10 पेयर बन गए, और एम्प्लॉयज़ होंगे तो बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे. सो दिस मेथड इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और इवन मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, फोर्थ मेथड इज ग्रेडिंग मेथड. क्या आप ग्रेड दे रहे हो? राइट, किस तरीके से? लेट्स से आपने सैटिस्फैक्ट्री, आउटस्टैंडिंग एंड पुअर, ये 3 ग्रेड सेट कर दिए. इन्हीं 3 ग्रेड में आपको सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को फिट करना है. ओके, 3 ग्रेड हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आउटस्टैंडिंग, सैटिस्फैक्ट्री एंड बिलो एवरेज या फिर पुअर. इन्हीं 3 ग्रेड के अंदर आपको सारे एम्प्लॉयज़ फिट करने हैं. ठीक, चेकलिस्ट. चेकलिस्ट के अंदर क्या होता है? दिस, आर यू एबल टू सी दिस? हाँ, चेकलिस्ट ऐसे एक परफॉर्मा होता है. एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल XYZ कंपनी, एम्प्लॉय का नाम लिख दिया, उसका टाइटल लिख दिया, डिपार्टमेंट लिख दिया, एंड देन येस एंड नो. क्या ये पंक्चुअल है? येस. क्या ये सारी मीटिंग अटेंड करता है? नो. कितनी कम करी है वो नहीं पूछा, येस एंड नो. ठीक है, क्या ये व्हाट डू वी से टाइमली ऑब्जेक्टिव्स मीट करता है? यस. कितने ऑब्जेक्टिव मीट करें ये नहीं पूछ रहा कोई. ओके, तो चेकलिस्ट है कि आप येस नो पे टिक कर रहे हो, दैट्स इट. चेकलिस्ट यही होती है कि ये रख लिया चार्जर, टिक, फ़ोन, टिक. राइट,
तो दिस इज हाउ द चेकलिस्ट इज मेड हेयर. चेकलिस्ट के बारे में पढ़ लो. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, इज जॉन इंटरेस्टेड इन हिज जॉब रोल, येस और नो. कितना इंटरेस्टेड है कितना डिसइंटरेस्टेड है ये यहाँ पे नहीं पता लग रहा. अगेन बस ये पता लग रहा है कि हाँ ये है इंटरेस्टेड या नहीं है. हाउ मच वी डू नॉट नो. ओके, डिटेल्ड आंसर यहाँ पे स्कोप नहीं है, इसलिए दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट सो एडवाइजेबल. ये मेथड एडवाइजेबल होता है जनरली जब गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग हो रही होती है, जब गार्ड्स वगैरह की नौकरी होती है, वहाँ पे ये मेथड एडवाइजेबल होता है. बट इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर हायर लेवल एम्प्लॉयज़ आर देयर, उनके लिए ये मेथड एडवाइजेबल नहीं है. राइट, चेकलिस्ट जैसे कि ये गार्ड ने क्या इतने टाइम पे आ गया, टिक. राइट, क्या ये टाइम पे ड्यूटी करके गया, टिक. ठीक, तो लोअर लेवल जॉब्स के लिए ये ओके है, हाई लेवल जॉब्स के लिए नहीं है. एसे अप्रेजल मेथड. अब पिछले वाले मेथड ने सोचा कि यहाँ पे तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अब यहाँ पे पूरा एसे लिखने को दे दिया है कि ठीक है हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे ओपन एंडेड, आप एम्प्लॉय के बारे में भरो. एसे लाइक दिस. मोस्ट सक्सेसफुल जॉब अकम्पलिशमेंट सिंस द लास्ट परफॉर्मेंस पीरियड. सोचो और लिखो एम्प्लॉय के बारे में. की स्ट्रेंथ, प्रॉब्लम्स, की एरियाज दैट नीड इम्प्रूवमेंट. तो एक पूरा आपका रिपोर्ट कार्ड बना के देते हैं डिटेल्ड में. ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ मेथड इज व्हाट, कि लेट्स से आई एम अ मैनेजर और मेरा लिखने का मन नहीं है एम्प्लॉय के बारे में, मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में लिख लिख के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं सिर्फ 1-2 लाइन्स ही लिखूँगी. इवन इफ एम्प्लॉय ने बहुत कुछ एकम्प्लिश किया है, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, मैं बस 2 ही लिख के ख़त्म करूँगी कि इतना बड़ा फॉर्म कौन भरे, सीधा लिखो और ख़त्म करो. राइट, शुरू के 2 फॉर्म मैंने अच्छे से भर दिए, बाकी के 4 फॉर्म मैं ऐसे ही भर दिए. तो क्या बाकी के 4 जो एम्प्लॉयज़ थे वो बुरे थे? नहीं, बट ये इवैल्यूएटर की ही तो गलती की वजह से उनको शायद कम बोनस मिलेगा, कम रिवॉर्ड मिलेगा. राइट, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट मेथड. इसके अंदर होता है एम्प्लॉई को आपको किसी ना किसी कैटेगरी में फिट करना है एंड इतने परसेंटेज होने ही चाहिए. जैसे कि आप एक ग्राफ देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि 10% वो कौन एम्प्लॉयज़ हैं जो पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 20% ऐसे कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 40% एवरेज की कैटेगरी में डालो ज़बरदस्ती, 20% गुड की कैटेगरी में डालो और 10% एक्सीलेंट की कैटेगरी में डालो. क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे आपके अबव एवरेज हों? हो सकता है, बट दिस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज फोर्सिंग यू टू पुट समबडी इन द पुअर परफॉर्मेंस कैटेगरी ऑल्सो. फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही देखना है, 10% शुड बी पुअर, 20% शुड बी बिलो एवरेज, 40% एवरेज, 20% गुड एंड 10% ओनली एक्सीलेंट. हो सकता है 20% एक्सीलेंट हो, बट नहीं, आपको बाकी के जो 10% ही एक्सीलेंट डालना है, बाकी के जो 10% बचे हो आपको उसके पीछे वाले क्राइटेरिया में डालने पड़ेंगे. ओके, यहाँ पे 5 क्राइटेरिया हैं, किसी किसी में 3 ही होते हैं एंड उनका परसेंटेज सेट होता है कि इतने इतने में डालने ही हैं. एवरीबडी कुड नॉट बी अबव एवरेज, somebody must be poor performer. ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत बड़ा नेगेटिव है कि somebody has to be in each part. अगर नहीं भी है तो भी आपको किसी ना किसी को डालना ही पड़ेगा किसी ना किसी पार्ट में. सो दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज. ठीक है, ये लो जनरल इलेक्ट्रिक कहाँ गया, ये पढ़ो.
क्या समझ में आया कि इन्होंने भी यही करा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अडॉप्ट किया। 3 कैटेगरी में ही आपने एम्प्लॉयज़ को डालना है। कैटेगरी ए टॉप 20% होने चाहिए, कैटेगरी बी मिडल 70% एंड कैटेगरी सी विच आर नॉट सो गुड परफॉर्मर्स 10%। और ये 10% को ले ऑफ एंड टर्मिनेशन भी फेस करना पड़ता था, राइट तो इन्होंने भी ये सिस्टम एट द एंड स्क्रैप ऑफ कर दिया। दिस सिस्टम वॉज फेस्ड आउट, ये आगे जाके नहीं चला। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा दिख नहीं ना, मुझे लग रहा है पर्दे भी लगाने पड़ेंगे तभी दिखेगा। अब तो तुम ऐसे अंधेरा करे सो जाएंगे सब। ओके तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का ये एग्जांपल है। पंखे भी बंद करने तुमने? अच्छा करो, हो ही नहीं रहा। इधर हाँ बैठ, अपनी जगह ही चेंज कर लो। ओके तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के भी कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज होंगे। एडवांटेज बीइंग क्लियर कट डिफरेंशिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कि 10% आर दीज सेट विच आर एक्सीलेंट परफॉर्मर्स, 50% are these set which are average performers, 40% are these set which needs improvement. ठीक, clear expectations, expectations भी clear है that if you want to be in this 10% lot आपको ये सारा काम करके देना होगा, otherwise you will be there in this or this lot, right? Alignment with goals, ये तो हर किसी के ही उसमें जाएगा that person's goals should always align with the organization goals. अगर ऐसा नहीं है you will not be able to thrive for long run. अगर आप यही सोचते रहोगे कि this is not where I belong, then you will be finally leaving the organization. कभी ना कभी you will be leaving, और वो कभी ना कभी बहुत जल्द होगा। अगर you feel, even if you are not paid well, if you feel that you are belonging here, एक बिलोंगिंगनेस वाली फील आती है, या फिर काम करने में मज़ा आता है, रोज़ उठने में मज़ा आता है, काम के लिए जाने में मज़ा आता है, एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम मज़ा आता है, देन यू कैन थ्राइव देयर, सर्वाइव देयर, ग्रो देयर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, शुरू में मे भी हो सकता है आप लोग ऐसी गलतियाँ करोगे जहाँ पे यू विल बी देयर इन सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको वाइब नहीं आती, राइट? हाँ, उसके लिए मॉडर्न मेथड्स है ना। ओके यस, मोस्टली यही होता है। किसी किसी केस में लेट्स से इसी केस के अंदर कर लें, कोई एम्प्लॉई है विच इज़ लेट्स से बिलो एवरेज, 30% बिलो एवरेज में आने चाहिए थे, बट आपको तो 20% ही डाल दें, तो 10% ऊपर भी तो आ गए, राइट? तो यहाँ पे एम्प्लॉय तो सफ़र नहीं हुआ वो वाला, यहाँ पे कौन सफ़र हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन सफ़र हो रहा है कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अडॉप्ट करके दे हैव देमसेल्फ क्रिएटेड एन इशू वेयर दे हैव टू जस्ट रेट 20% बिलो एवरेज, और उसके ऊपर आपको अगर 30% है तो 10% आपको ऊपर करना ही पड़ेगा, राइट? तो हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर बायसनेस है, अगर कोई गड़बड़ है रेटिंग मेथड में, देन द एम्प्लॉई सफ़र्स। ऐसे बहुत सारे इवैल्यूएटर्स होते हैं विच जान के मेक्स दी एम्प्लॉय सफ़र। हाँ, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी डीमोटिवेट होता है एम्प्लॉय, विच फाइनली लीड्स टू दैट एम्प्लॉय लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? यस, दैट हैपेंस। चैलेंजेस या फिर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, एम्प्लॉय डिसकंटेंट, I am not feeling happy in this organization because this organization always rates me bad, right?
बायसनेस एंड फेयरनेस कंसर्न्स, बायसनेस हो सकती है, राइट, दिस एम्प्लॉय माइट बी अ वेरी गुड परफॉर्मर बट मैं इसको एवरेज कैटेगरी में डाल रही हूँ, आई एम बायस बिकॉज. नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस, I do not account for what his progress has been from the past 2 months. मैं ये देखूंगी इसने पूरे साल में नहीं करा तो इसको मैं एवरेज की कैटेगरी में ही डालूंगी. आई विल नॉट बी कंसिडरिंग कि अच्छा इसने ट्रेनिंग ली थी, इसकी 1 मंथ में ग्रोथ थोड़ी सी ही इंक्रीज हुई है बट हुई है, इंडिविजुअल ग्रोथ अकाउंट नहीं हो रही यहाँ पे. ओके. क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, अगला मेथड. यहाँ पे अगेन देर आर सम की पॉइंटर्स जिसके बेसिस पे आप क्रिटिकल इंसिडेंट्स, मेन जो की परफॉर्मेंस एरियाज है ना, उसी के जैसा है ये कि आप कुछ इंसिडेंट्स के बेसिस पे एम्प्लॉय को रेट करते हो. हर ओवरऑल ब्रॉडली रेट नहीं करते, कुछ इंसिडेंट्स के बेसिस पे करते हो. जैसे कि लेट्स से इन केस ऑफ फायर और सम एक्सीडेंट, नंबर 1, क्या इस एम्प्लॉय ने इन्फॉर्म द सुपीरियर इमीडिएटली, रेटिंग फ्रॉम 1 to 5. हाँ, इसने इन्फॉर्म कर दिया 5, वेरी गुड. सेकेंड, दिस पर्सन बिकेम एंक्शियस ऑन द लॉस ऑफ आउटपुट, क्या इसको एंग्जाइटी हो गई, देन उसकी रेटिंग हाँ हो गई थी 4 नंबर. देन मतलब समझ रहे हो, दीज आर द की पॉइंट्स जिसके बेसिस पे इसको रेट किया जा रहा है, ओवरऑल नहीं, क्या ये पंक्चुअल है, क्या ये ऑनेस्ट है, क्या ये एथिकल है, नहीं. आपने इंसिडेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए, फ्रेजेस बनाए, एंड देन यू आर रेटिंग द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू हाउ दे परफॉर्म्ड इन दैट सिचुएशन. ठीक है, इंसिडेंट के बेसिस पे. ओके. This approach can be used when specific jobs vary greatly from week to week. अगर मोनोटोनस एक ही टाइप की जॉब है देन कोई फ़ायदा नहीं है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का. अगर जॉब बार बार चेंज होती रहती है, राइट, फायर हज़ार्ड्स होते रहते हैं, लेट्स से सम वेरी रिस्की जॉब इज़ देयर, तब फ़ायदा है इस चीज़ को मॉनिटर करने का कि इसने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे परफॉर्म किया. ये 5 फ्रेजेस हैं, इनकी रेटिंग दो. इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने दूसरी सिचुएशन में क्या किया, ये 5 की क्राइटेरियाज हैं, इनके बेसिस पे रेटिंग दो. राइट. फील्ड रिव्यू मेथड, नेक्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड. यहाँ पे आप बायसनेस को कम करने के लिए एक एक्सटर्नल बुलाते हो, सम फील्ड रिव्यूअर और सम कंसल्टेंट हु रिव्यूज द परफॉर्मेंस. That person can review the performance on the basis of physical record or on the basis of live demonstration. आप काम कर रहे हो, I am reviewing you on the job. आपने काम कर दिया है, मैं आपके रिपोर्ट कार्ड से आपको रिव्यू कर रही हूँ. आपके टारगेट कितने मीट हुए हैं उसके बेसिस पे रिव्यू कर रही हूँ. ठीक है. राइट, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन हो सकता है व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग द जॉब, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन. एंड इसमें कॉस्ट एंड रिसोर्स ज़्यादा खर्च होता है बिकॉज यू नीड टू एम्प्लॉय अ फील्ड एग्जामिनर, यू नीड टू एम्प्लॉय समबडी आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू रिव्यू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. तो इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है. ठीक है. एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो भी लोग हैं वो तो जानते ही हैं एम्प्लॉयज़ को, वो रेटिंग भी दे देते हैं. बट उसी सब्जेक्टिविटी को, उसी बायसनेस को कम करने के लिए आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, बट आप आउटसाइडर को बुला के लेके आते हो. ठीक है. फील्ड रिव्यू मेथड. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड. गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये काफ़ी होता है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट जाती है तो कॉन्फिडेंशियल करके जाती है. राइट. कॉन्फिडेंशियल रिव्यू मेथड. यहाँ पर somebody writes a report on you and you do not know कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है. इट्स कॉन्फिडेंशियल. वो डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयर के पास या फिर डायरेक्ट आपके नेक्स्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगी जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट सीक कर रहे हो. ओके. लेट्स से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, LOR. वी डू नॉट शो वॉट वी हैव रिटन टू द स्टूडेंट.
हम वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डायरेक्टली अपने पार्ट पे अपलोड कर देते हैं ऑन दी वेबसाइट. वी डू नॉट आस्क द स्टूडेंट कि क्या ये ठीक लिखा है मैंने आपके बारे में, क्या यही चाहते हो. नो, वी जस्ट राइट इट एंड वी अपलोड इट ऑन दी वेबसाइट. फिर दैट वेबसाइट, दैट यूनिवर्सिटी, अगर उनको लगता है कि ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फेवर में है कैंडिडेट के, दे आस्क द कैंडिडेट टू जॉइन, अदरवाइज नॉट. ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है. एडवांटेजेस क्या हैं? ये 3. एनकरेजेस ऑनेस्टी. मैं सब सच लिखूंगी अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड है तो. अब फॉर एग्जांपल, अभी तो चलो पहली दूसरी क्लास है, एक हफ्ते के बाद अगर मैं आपको बोलूँ एक पेपर पे रोल नंबर लिख के, नाम लिख के, सब कुछ लिख के मुझे मेरा फीडबैक दो, तो सब लोग अच्छा अच्छा देने की कोशिश करेंगे. ऑन दी अदर हैंड मैं बोलूँ कि कोई नाम रोल नंबर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फीडबैक दो, राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी. देन आई डू नॉट नो व्हाट यू विल बी रेटिंग मी ऑन, राइट. तो ऑनेस्टी प्रमोट होती है इफ़ कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ देयर, प्राइवेसी इज़ देयर, एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है. आई विल नॉट बी इन फेवर और अगेंस्ट एनीबडी, देन you will not be in favor or against me, you will be writing what is the truth objectively, right. negatives क्या हो सकते हैं? limited feedback for improvement. I do not know किसने क्या बोला है, किसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, तो मुझे तो मेरा फीडबैक मिला ही नहीं, राइट. मिल गया, बट इफ़ इन केस मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, LOR का केस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जहाँ पे बच्चे को पता ही नहीं मैंने क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखा है. यहाँ पे तो फिर भी अभी जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, यू राइटिंग रेटिंग मी, यहाँ पे मुझे एटलीस्ट पता तो लग जा रहा है कि ब्रॉड एरियाज क्या हैं विच आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन. बट LOR के अंदर तो बच्चे को पता ही नहीं लग रहा कि मैंने उसके बारे में क्या लिख दिया है. वो तो सीधा मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, एंड देन स्टूडेंट डज नॉट गेट टू नो कि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं. ओके. पोटेंशियल फॉर इनएक्यूरेट असेसमेंट. हो सकता है वो बच्चा किसी सोसाइटी में होता, हो सकता है वो बच्चे ने काफ़ी कुछ काम किया होता जो कि मुझे पता ही नहीं है. जब तक मैं उससे पूछूंगी नहीं तब तक आई विल नॉट बी गेटिंग कि क्या उसने एक्चुअल में काम कर दिया है. मैं बस लिखती जा रही हूँ उसके बारे में फ्लो में, जो मुझे लगता है कि क्लासरूम में उसने कैसा परफॉर्म करा है, एंड देन आई एम सबमिटिंग दैट LOR. मैंने बच्चे से पूछा ही नहीं कि क्या आपके कोई और अकम्पलिशमेंट्स हैं, राइट. Then lack of transparency. Nobody knows what is being written in favor or against me. Transparency नहीं है, improvement का scope कम है. And limited accountability. हो सकता है मैंने बहुत ही अच्छा लिख दिया या फिर बहुत ही बुरा लिख दिया एम्प्लॉई उस बच्चे के बारे में LOR में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में. आई विल नॉट बी अकाउंटेबल टू एनीबडी. मान लो अब इसी केस के अंदर आप लोगों ने मेरे बारे में बहुत अच्छा बहुत बुरा लिख दिया, nobody has their name written, nobody is accountable, किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा, पन्नों के बीच में है, राइट. तो देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, आपसे कोई जवाब नहीं मांगेगा कि किसने करा ये. सिमिलरली LOR के केस में भी बच्चे को पता ही नहीं है मैंने उसके बारे में क्या किया है, बहुत बुरा लिख दिया है, लेट्स से, विच आई डू नॉट जनरली राइट, बट अगर बहुत ही बुरा लिख दिया है तो दैट पर्सन विल नॉट बी नोइंग कि मुझे दिखाओ आपने क्या लिखा है. आई एम नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी, right. Then comes the modern methods. Management by objective. Management by objective, it was formulated by Peter Drucker in 1954. But employ हम अभी भी क्या करते हैं, traditional method, right. Modern method क्या बोलता है of MBO, management by objective, that there was the process, हाँ, there should be smart objectives, smart goals. smart abbreviation है SMART. S is specific, कि आप एम्प्लॉय को बताओ कि ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है आपसे. इट शुड बी मेजरेबल, कि जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है दैट शुड बी मेजरेबल, कि ये आपने अच्छा किया, या आपने बुरा किया, या आपने बहुत बुरा किया, आपने बहुत अच्छा किया. इट शुड बी मेजरेबल. आपने 10,000 एम्प्लॉयज़ को इस साल 10,000 कस्टमर्स लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है.
8,000 लेके आयो, अच्छी बात है। 5,000 लेके आयो, सेटिस्फैक्ट्री। 2,000 लेके आयो, वेरी पुअर, राइट। इट शुड बी मेजरेबल रिजल्ट्स। अटेनेबल, अब मैंने बोला कि आपको इस एक दिन में 20,000 लोगों को कॉल करके उनके LIC कराने हैं। इज़ इट डूएबल? नो, राइट। तो ऐसा मैं कोई गोल ही सेट नहीं करूँगी, राइट। देन रिजल्ट ओरिएंटेड, द गोल दैट आई एम सेटिंग शुड बी अलाइंड विद द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, मिशन, विजन। रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ करने को वो एक्चुअल में पॉजिटिव इफेक्ट लेके आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टाइमली। ये नहीं कि मैंने बोला कि कॉल कर देना इन लोगों को, कब तक पता ही नहीं, बताया ही नहीं। दैट इज़ नॉट अ स्मार्ट गोल, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ये 5 चीज़ें होना ज़रूरी हैं टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, स्पेसिफिक। मेजरेबल, तुमने इतने लोगों को के साथ कांटेक्ट करना है, इतने लोगों को कॉल करके इनवाइट करना है, तुमने इतने लोगों को करना है, मेजरेबल। अटेनेबल, डूएबल होना चाहिए, नहीं कि इतने टारगेट मैंने सेट कर दिए विच आर नॉट अटेनेबल, राइट। रिजल्ट ओरिएंटेड, द टास्क्स दैट आई एम गिविंग यू शुड बी इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, राइट। एंड टाइमली, टाइमली हो जाए सारा काम। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि 1 महीने में 100 लोगों को कॉल कर दो, तो कोई भी कर देगा। ये तो टारगेट टाइमली तो है, बट दिस इज नॉट व्हाट डू वी से डिज़ायरेबल, ठीक है। और क्या बोलता है, इसको रीड करते हैं। Okay, this is better. 6 steps of MBO. Number 1, सबसे नीचे, डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। गोल पता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के, मिशन विजन पता है, उसके हट के आपने काम नहीं करना है, उसी डायरेक्शन में करना है। सेकेंड, डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट डज द एम्प्लॉय नीड्स टू डू, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द एम्प्लॉय, एंड द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव वाली स्लाइड यहाँ पे आ जाएगी ये, राइट। सेकेंड पॉइंट के अंदर डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस। कंटिन्यूसली टाइमली उसको प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहो, ताकि अगर कुछ लैग आए तो रिवाइज द गोल्स, रिवाइज द ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने जो गोल सेट करा है आपको लग रहा है कि दैट इज एक्चुअली अनअटेनेबल, जो कि पहले आपको अटेनेबल लग रहा था, बट लेट्स से ड्यू टू कोविड और लेट्स से ड्यू टू एनीथिंग, एनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन, दैट गोल इज नॉट सो अटेनेबल नाउ, तो रिवाइज द ऑब्जेक्टिव्स। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के जो आपने हर एम्प्लॉय को ऑब्जेक्टिव दिया है, ऑन दोज बेसिस ओनली शुड द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस बी इवैल्यूएटेड। जो आपने टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, ओनली ऑन दोज बेसिस शुड द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस बी इवैल्यूएटेड, नथिंग एल्स। एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अच्छा काम किया है, फीडबैक अच्छा दो, थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्टरी काम दिया है, मोटिवेट करो, राइट। एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल एज पर दी वर्क डन, ठीक। दिस इज़, ये बहुत ज़्यादा आजकल चलता है, 360 डिग्री अप्रेजल। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, सेल्फ। टीचर्स के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अपार फॉर्म होता है, APAR। सबसे पहले वो अपार हमें खुद भरना होता है, सेल्फ इवैल्यूएशन, राइट। हम अपने बारे में सब कुछ लिख देते हैं, जैसे LOR के अंदर मुझे तो पता ही नहीं था उस एम्प्लॉय, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्या क्या करा है, राइट।
यहाँ पे एटलीस्ट माई एम्प्लॉयर नोज़ कि मैंने क्या क्या करा है, क्या क्या वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, क्या क्या कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं, क्या क्या पेपर पब्लिश किए हैं, कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाया है। सेल्फ इवैल्यूएशन में मैं वो सब कुछ लिख दूँगी, ठीक है। देन हम मेरे पीयर्स मतलब मेरे साथ के कलीग्स, आई विल बी इवैल्यूएटेड इवन ऑन द बेसिस ऑफ what they think of me. Am I a team leader? Am I able to work in a team? Am I able to work in a group? Am I capable to resolve their conflicts? कभी नीड होती है तो क्या मैं उनका वर्कलोड शेयर करती हूँ? Peers evaluation. Then subordinate evaluation. काफ़ी बार how you behave with the subordinate also tells a lot about you. Seniors के साथ तो सब अच्छा ही behave करते हैं, राइट। सबऑर्डिनेट्स के साथ आप अपने से एक रैंक लोअर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अ लॉट अबाउट यू, राइट। क्या आप सारा का सारा डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हो काम, सारा का सारा काम बांट दे रहे हो अपने जूनियर्स में, या फिर खुद भी कुछ रख रहे हो, दैट योर सबऑर्डिनेट्स विल बी टेलिंग अबाउट यू। ये तो बहुत ज़्यादा डेलीगेट कर देते हैं हमारे ऊपर काम, वी आर ओवरवर्क्ड, वी आर ओवरबर्डन बिकॉज ऑफ दिस सीनियर, राइट। आप और आपके पीयर्स तो एंजॉय कर रहे होंगे, आपने अपने आप को भी सेल्फ इवैल्यूएशन अच्छा दिया होगा, बट सबऑर्डिनेट तो दुखी है आपसे, राइट। टॉप मैनेजमेंट जनरली आपको रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ आपने कोई सजेशन, कोई ओपिनियन, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है क्या जो कि कंपनी के लिए अच्छा है, ओके। देन इमीडिएट सुपीरियर, जिसको आप रिपोर्ट करते हो, उनको तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो आप, सो दे विल आल्सो बी इवैल्यूएटिंग यू। एंड कस्टमर्स, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी, नॉट जस्ट कस्टमर्स। अगर आपका गवर्नमेंट के साथ लेन देन है तो यहाँ पे गवर्नमेंट और पार्टी, इसकी जगह आप स्टेक होल्डर्स लिख सकते हो, एनी स्टेक होल्डर आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आपकी बातचीत है, मे बी सप्लायर है कोई, राइट, मे बी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है कोई, ओके। तो यू विल बी रेटेड ऑन एवरी एस्पेक्ट। हो सकता है आपको किसी ने अच्छा रेटिंग नहीं दी है, बट बाकी सब ने अच्छी रेटिंग दी है, तो रिजल्ट्स विल बी एवरेज्ड आउट, ओके। एक जगह से रेटिंग लेने का मतलब होता है, हो सकता है बायसनेस हो, बहुत अच्छी रेटिंग मिल जाए, बहुत बुरी रेटिंग मिल जाए, बट सबसे रेटिंग लेने का फ़ायदा ये होता है दैट योर रेटिंग विल बी एवरेज्ड आउट, और वो आपका एक्चुअल रिजल्ट शो करेगी, ठीक है। एडवांटेजेस, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, बहुत डिटेल्ड असेसमेंट होती है, एवरीबडी इज इवैल्यूएटिंग यू, आपको सबके साथ बना के रखनी है, राइट। एनहांस सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में भी आपको रेटिंग देनी है तो अपने बारे में भी तो पता लगता है, सेल्फ अवेयर हो जाते हो। इम्प्रूव्ड फीडबैक क्वालिटी, हर जगह से फीडबैक मिल रहा है, सबऑर्डिनेट भी दे रहा है, सुपीरियर भी दे रहा है, टॉप मैनेजमेंट भी दे रहा है, साथ वाले भी दे रहे हैं, एवरीबडी इज गिविंग यू फीडबैक, राइट। डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ से ही आपको पता लगता है कि कहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, what are my capabilities, in which direction should I move, right। अगर मेरे सबऑर्डिनेट मुझे अच्छा रेटिंग नहीं दे रहा है, then I should be holding more work and be good with the subordinates। मे बी मुझे अपना अभी हम EQ की बात कर रहे थे, मे बी आई नीड टू डेवलप माई EQ, ताकि मुझे समझ में आए कि उसके ऊपर भी इतना ओवरबर्डन मुझे नहीं करना चाहिए। चैलेंजेस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ट्रस्ट, हो सकता है एवरीबडी इज प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, राइट, इसको निकालो। रेटर बायस एंड सब्जेक्टिविटी, अगेन बायसनेस यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो सकती है। इफ़ टू पीपल, टॉप टू आपका व्हाट डू वी से बॉस एंड टॉप मैनेजमेंट, बोथ आर नॉट इन फेवर ऑफ यू, देन वो बुरी रेटिंग देंगे। टाइम एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, बहुत टाइम लगता है फिलअप करने के लिए, आप पहले अपना फॉर्म भर रहे हो, फिर अपने दोस्तों का भी फॉर्म भर रहे हो, राइट, फिर अपने जूनियर्स का भी भर रहे हो, अपने सुपीरियर्स का भी भर रहे हो,
एवरीबडी इज फिलिंग फॉर्म्स, 5-6 फॉर्म्स हो जाते हैं सबके पास, तो कितना डिटेल में कौन भरता है, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सिटी अगेन, हर किसी के बारे में इतना डेप्थ में जानना इम्पॉर्टेंट फीजिबल ही नहीं है। मेरी टॉप मैनेजमेंट को मेरे बारे में इतना डिटेल में पता ही नहीं हो सकता। दे विल बी रिलाइंग ऑन वॉट माई इमीडिएट सुपीरियर इज टेलिंग अबाउट मी। हो सकता है उसने 8 रेटिंग दी है, वो बोलते चल ठीक है मैं भी 8 ही दे देता, 8 रेटिंग दे देता हूँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा टॉप मैनेजमेंट को मेरे बारे में, राइट। एंड पोटेंशियल फॉर डिसअग्रीमेंट, पीयर्स कुछ और बोल रहे हैं मेरे बारे में, सबऑर्डिनेट कुछ और बोल रहा है मेरे बारे में, सुपीरियर कुछ और बोल रहा है, सबकी रेटिंग टोटली अलग अलग है। स्प्लिट पर्सनैलिटी, राइट, सबके साथ अलग हूँ मैं, सबऑर्डिनेट्स के साथ अलग हूँ, तुम लोगों के साथ अलग हूँ, मेरे साथ वालों के साथ अलग हूँ, राइट। सब इतनी वेरिड मुझे रेटिंग दे रहे हैं दैट एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज कि इसको एवरेज रेटिंग क्या देनी है। कोई मुझे टॉप परफॉर्मर बोल रहा है, कोई मुझे बिल्कुल ही 0 बोल रहा है। ओके ओके बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, BARS, ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपने क्या करा है कि लेट्स से एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया लिया है विच इज कस्टमर सर्विस हेयर, राइट, कस्टमर सर्विस टॉप पे लिखा है। उस कस्टमर सर्विस के आपने कुछ 7-8 जितने भी आपने लगता है आपको 7-8 की एरियाज लिख दिए हैं कि कस्टमर सर्विस के अंदर भी क्या आता है। कस्टमर सर्विस के अंदर 7 से रीड करेंगे, कुड बी एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन द टर्म्स ऑन द मेन्यू, कस्टमर को मेन्यू के टर्म समझाने हैं 7। 6th है कि कस्टमर्स को हेलो करना है, हाउ वाज योर डे, क्या उसने ये बोला, क्या उसने मेन्यू की टर्म्स एक्सप्लेन करी। 5th लिखा हुआ है कुड बी एक्सपेक्टेड टू आस्क कस्टमर्स इफ दे वांट समथिंग, नैपकिन्स, मील्स, एनीथिंग। 4th है कुड बी एक्सपेक्टेड टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट एक कस्टमर सर्विस में यही इंपॉर्टेंट होती हैं कि हेलो सर, हाय सर, व्हाट डू यू वांट, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, कुछ और मीठे में कुछ चाहिए, डेजर्ट के लिए पूछा कि नहीं। अगर आप डेजर्ट ऑर्डर नहीं करते तो एवरी टाइम दे आस्क कुछ पीने में चाहिए, कुछ डेजर्ट चाहिए, राइट। तो दैट इज़ देयर KRA, उनके उसमें है कि आपको ये करना है, राइट। कस्टमर सर्विस की डिस्क्रिप्शन ही उनके लिए ये है। तो आप एम्प्लॉय को रेट करोगे क्या उसने ये सब किया है, उसका बिहेवियर कैसा था, ठीक है। अब ये सिर्फ कस्टमर सर्विस है, ऊपर रेटिंग कुछ और होगी एंड देन उनके बारे में अलग चीज़ें होंगी, देन यू विल हैव टू रेट हाँ 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 किया ये सब, ओके। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं करता है कोई या 2-3 चीज़ें मिला के नहीं करता है तो उसके बारे में अगेन उसको मेंटोरिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग की अगर ज़रूरत है, गाइडेंस, ये सब दिया जाता है, ठीक है। 3rd जैसे लिखा हुआ है हेयर्स योर ऑर्डर, ये भी बोलना इज़ अ पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस का इंडिकेटर। 2nd में लिखा है कुड बी एक्सपेक्टेड नॉट टू टॉक ऑन फोन होगा, कुड बी एक्सपेक्टेड नॉट टू टॉक ऑन फोन, जैसे जैसे लास्ट के 2 फेलियर है। वाइल टेकिंग कस्टमर्स ऑर्डर, कस्टमर का ऑर्डर ले रहे हो तो आप फ़ोन पे बात नहीं करोगे। एंड कुड बी एक्सपेक्टेड नॉट टू येल एट द कस्टमर्स, ठीक है। तो ये सारे आपके गुड कस्टमर सर्विस के इंडिकेटर्स हैं। क्या आपने ये सब किया है, क्या आपका बिहेवियर इनके अकॉर्डिंगली एंकर्ड था, सही था, दिस इज द BARS। एज द नेम सेज ये सिर्फ बिहेवियर को जज करता है, राइट। ये टास्क के एंड रिजल्ट को जज नहीं करता। दिस इज़ नॉट कंसर्न्ड विद कितना आपने सेल्स लेके आए हो, दिस इज़ नॉट कंसर्न्ड विद कस्टमर ने कितने का ऑर्डर किया, दिस इज़ जस्ट कंसर्न्ड विद हाउ वॉज योर बिहेवियर विद द कस्टमर, ओके। ये नहीं कि क्या कस्टमर ने आपके पास इतने से अबव ऑर्डर करा, नो,
चाहे वो ऑर्डर मिनिमम ही कर रहा हो, क्या आपका बिहेवियर उस मिनिमम ऑर्डर के लिए भी सब कुछ था? दिस इज बार्स, ठीक है। एडवांटेजेस, स्पेसिफिक बना देता है चीज़ों को कि यू नो कि यू आर एक्सपेक्टेड ऑफ दीज 7 बिहेवियर्स, ये तो आपने करने ही करने हैं। रिड्यूस्ड बायस, सब कुछ तो आपने डिटेल में लिख ही दिया है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू से हेलो, यू आर एक्सपेक्टेड टू से कि डू यू वांट एनीथिंग एल्स, यू आर एक्सपेक्टेड टू से दिस, तो इसमें बायसनेस कहाँ से आएगी? या तो आप बोलोगे या नहीं बोलोगे। इम्प्रूव्ड फीडबैक, you know what exactly you need to work on, right? Which behavior you need to improve upon. Challenges कि हर behavior के लिए आपको ये 7-8 pointers बनाने पड़ेंगे हर एक behavior के लिए, right? तो वो task हो सकता है। चलो, तो मैंने यूनिट 1 पूरा ही करा दिया फिर तो तुम्हें। आया कुछ समझ में कि बहुत स्पीड में हो गया? सो वी हैव डन यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड बचा है, ग्राफिक रेटिंग सिस्टम डन, बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्केल डन, बैलेंस स्कोर कार्ड इज लेफ्ट, 360 डिग्रीज डन, फॉर्मेट्स ऑफ स्केल्स, अलग अलग टाइप के स्केल भी आपने देख ही लिए थे, राइट? पेयर्ड कंपैरिजन, रेटिंग स्केल, ग्राफिक स्केल। ओके, सेकंड पार्ट इज लेफ्ट, डिजाइनिंग अप्रेजल फॉर्म, फीडबैक, काउंसलिंग। ओके, एनी डाउट related to subject, related to course, related to anything in SOL? Key result areas कि what are the areas that you need to focus upon, ठीक है? वही एरियाज पे आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगी, ओके? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, डोमिनोज का एम्प्लॉय का KRA अलग होता है एंड या KPI के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अलग होता है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का KRA अलग होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पंच इन पंच आउट टाइम नहीं देखोगे, बट डोमिनोज के एम्प्लॉय का देखोगे, ओके? ठीक, एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्लासेस, एनीथिंग? पूछ लो कुछ तो। ये थे मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स में अभी 1-2 और बचे हैं, साइकोलॉजिकल रेटिंग भी होती है। इन ट्रेडिशनल मॉडर्न में कोई डाउट है पूछ लो। इनकी हेडिंग्स लिख लो, क्योंकि आपकी बुक में शायद ये हेडिंग्स नहीं लिखी हुई हैं, तो यू विल एटलीस्ट गेट टू नो कि आपने क्या क्या पढ़ना है। बुक में शायद डिस्टिंक्शन नहीं है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल का, यू जस्ट नोट कि ये मॉडर्न है, ये ट्रेडिशनल है, दैट्स इट।
You want me to shift to some particular slide? No? Are you all regular? मतलब मुझे यही शक्लें मिलेंगी अगली बार भी कि कभी आते हो कभी नहीं आते हो टाइप? अरे कुछ तो बोलो. रेगुलर. ओके ओके. इरेगुलर मतलब कितना इरेगुलर? एक एक हफ्ता छोड़ के आते हो या एक हफ्ता फिर लास्ट वाला हफ्ता? हाउ मच इरेगुलर? मतलब ये तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना. येस और नो. आते हो नहीं आते हो. कितना नहीं आते हो? 3-3 हफ्ते का फिर तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा उसमें तो. ओके. ये तो ये वाली इस सब्जेक्ट की तो फर्स्ट क्लास ही है. ओके. इसके अगली संडे. अच्छा कौन कौन यहाँ पे वर्किंग है? ओके. कहाँ पे करते हैं आप जॉब? अच्छा ओके. तो इससे पहले ग्रेजुएशन कब की थी और कहाँ से की थी? ओके. उसके बाद ये 4-5 साल का वर्क एक्सपीरियंस. ओके. तो और कौन जॉब वाले? ओके. कोई इंटर्नशिप कर रहा हो? कंप्यूटर कंप्लीटेड इंटर्नशिप. ओके. कहाँ पे? ओके. क्या क्या रोल था? HR. ओके. तो माई ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग दिस इज कि वाई MBA from here and why this particular subject? Do you want to be into the HR role? क्योंकि generally what I have seen is HR रोल के अंदर जितना जल्दी जाओ ना उतना बेटर होता है. आपको 40 इयर्स 50 इयर्स की एज में HR रोल में नहीं लेंगे वो. तो HR रोल अगर आप सब फ्रेशर्स हो अभी तो HR पढ़ रहे हो अच्छी बात है. इसके बाद इमीडिएटली HR रोल में जाओगे बेटर रहेगा. प्लेसमेंट ड्राइव हो तो रही है अभी. इस पे देखना है SWL की वेबसाइट पे है. देयर इज़ अ प्लेसमेंट ड्राइव गोइंग ऑन. काफ़ी कंपनीज आ रही हैं. सारे रोल कस्टमर केयर सारी कंपनीज वही रोल ऑफर कर रही हैं. ओके. मे बी अलग अलग दिन पे अलग अलग रोल के लिए हो रहा हो. ओके ओके. देख लेना इंक्वायर कर लेना कि और HR के लिए स्पेसिफिक कोई आ रही है कंपनी तो. ओके. तो HR में जितना जल्दी जाओगे उतना बेटर है. तो बेटर होगा इसके बाद ही चले जाओ. नहीं जाना है अभी टाइम है. इंटर्नशिप कर लो. कीप डूइंग समथिंग. ठीक है. इंटर्नशिप करो या फिर कोई कोर्स कर लो. ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. डू देम. सर्टिफिकेशन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है. सर्टिफिकेट नहीं लोगे तो कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा आपका बिना सर्टिफिकेशन के. डू दैट. एनरोल इनटू दैट. राइट. बाकी टाइम क्या करते हो मंडे टू फ्राइडे फिर? तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यही सब कर लो. अगर अभी फैमिली का कोई एज सच कोई प्रेशर नहीं है. क्या? हाँ मैंने पिछली क्लास में भी करा था. HR के लिए मैंने 2 कोर्स सजेस्ट करे हैं. एक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कर रही हैं. आपने भी देखा था. इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोर्स है. शॉर्ट टर्म कोर्स भी है लॉन्ग वाला भी है. ठीक है.
और आप पावर BI सीख लो, मेरा सजेशन होगा पावर BI, POWER स्पेस कैपिटल B कैपिटल I, BI इज़ बिजनेस इंटेलिजेंस। जब भी आप किसी फर्म में जाओगे you will be expected to accumulate the results and present, तो that tool is for that। फिर हाँ हाँ देखा है आपने, ओके। तो पावर BI ये कोर्स है। एक आपके HR रिलेटेड स्किल्स को एनहांस करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स है, डू दैट जब भी टाइम हो, जब भी मन हो, ठीक है, ओके। अटेंडेंस लिख दी सबने? वो भाई साहब दोबारा बोलो। हार्डवेयर स्किल्स, कंप्यूटर रिलेटेड हार्डवेयर स्किल्स, सॉफ्टवेयर HR रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। HRIS में देखो क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैसे तो हर कंपनी अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करते हैं, बट फिर भी अगर कोई सेट हैं कोई सॉफ्टवेयर तो HRIS के अंडर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इतना डिफरेंस नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत ही होगा तो हाँ। फर्स्ट हाँ, फोर्स चॉइस भी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं बताया कि यू आर फोर्स टू चूज समथिंग फॉर एन एम्प्लॉई। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी जैसे आपको किसी ना किसी कैटेगरी में डालना ही है, फोर्स चॉइस में भी यही है कि ये इतने एम्प्लॉयज़ हमें बताओ जो कि काम नहीं कर रहे हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूशन बताया था आपने, हाँ उसी की तरह है ना, बस हाँ हमें एम्प्लॉय बताना है कितने काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब यहाँ पे भी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाइज फोर्स्ड है, यहाँ पे चॉइस वाइज वो है, आपने फिक्स कर दिया है कि चूज़ द एम्प्लॉय विच आर नॉट वर्किंग। हो सकता है सारे काम कर रहे हो बट यू आर फोर्स टू चूज़ देम। और मॉडर्न मेथड्स अभी थोड़े एक दो बचे हैं। और कोई डाउट? अटेंडेंस कहाँ पे है? अटेंडेंस शीट कहाँ है? भर दिया सबने? भरो भरो भरो। तो आपको ये स्केड्यूल वेबसाइट पे दिख जाता है हमेशा, एक दो दिन पहले ना? ओके। एंड हाउ डज योर असेसमेंट टेक्स प्लेस, इंटरनल असेसमेंट? क्या क्या क्या? ओके ओके ओके। तो MBA के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न विल बी कि फर्स्ट आपकी केस स्टडी आएगी, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, राइट? तो अगली क्लास में हम केस स्टडी पढ़ना वगैरह भी सीख लेंगे कि हाउ टू हैंडल अ केस स्टडी, ठीक है? थ्योरेटिकल है पूरा, HR तो थ्योरेटिकल है। केस स्टडी के अंदर जैसे मान लो कोई एक केस दे दिया जाएगा आपको, एंड देन यू विल बी आस्क्ड कि विच रेटिंग मेथड आर दे अडॉप्टिंग, व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ दैट,
व्हाट दे शुड बी स्विचिंग ऑन टू, ऐसा कुछ केस स्टडी बन सकती है। वेबसाइट तो आपको ऑनलाइन गूगल स्कॉलर पे बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल सकती हैं, गूगल स्कॉलर, ठीक है, वहाँ पे रिसर्च पेपर्स के अंदर केस स्टडीज़ लिखी हुई होती हैं। बाकी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू उसका एक्सेस, बट आई डोंट नो आप उसको एक्सेस कर पाओगे कि नहीं। MIT, हार्वर्ड, इन सब की भी केस स्टडीज़ इनकी वेबसाइट्स पे आती हैं, इनके जर्नल्स आते हैं। अब आई डोंट नो सब्सक्रिप्शन लेना होगा या फिर यू विल बी एबल टू एक्सेस इट। बुक तो आपकी इसमें जो सिलेबस है ना, सिलेबस यू हैव सिलेबस विद यू, अदरवाइज अच्छा रीडिंग लिस्ट, मैं रीडिंग लिस्ट भी अगली क्लास में डिस्प्ले कर दूँगी कि काफ़ी सारी बुक्स हैं इसकी, आप उनमें से देख सकते हो। SLM मिल गया, सेल्फ लर्निंग मटेरियल इसका नहीं मिला, ओके। तो अदरवाइज हाउ डू यू स्टडी, SLM से या फिर बुक से? ओके, ठीक है, चलो तो फिर इसके अगली क्लास भी है तुम्हारी। सबसे दूर से कौन आता है यहाँ पे बदरपुर के अलावा? पास से आते हो अदरवाइज?